Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and I'm here with the most requested video, and that is, ma'am, how to prepare for CDSU 2021 examination. As per to the recent survey that I conducted on Instagram, so I got to know that all of you are pretty much shocked that how the cutoff is rising so much. Secondly, you don't understand that how the trend is changing. So I asked you about the problems that you're facing, and I'm here with a solution for everything. Plus, I will be giving you all the secret recipes that how Insight SSB students, the crash course students, are able to make it through within 1 month. So all those things I will be discussing here, that how to go about the syllabus, how to prepare things, what all timetable you should follow. Okay, you don't need to give 5-6 hours so as to prepare for serious examination. It is not UPSC civil services, so don't get frightened. There are specific areas that you need to prepare, and to understand that how to completely make sure that you follow the right method, you follow the smart work over hard work. You need to go through this video properly. You will get to know that what all problems were there, and you'll also get to know the solution, that how to go about the things. Okay, just giving a brief introduction about myself. I'm Vishali and have been recommended 5 times in a row, all from written entries, that is FCAT and CDSE. And not only that, I have given 30 plus recommendation within last 6 months through Insight SSB platform. And I've also made sure that a lot of our students clear the CDSE written and FCAT written examination. If you want to see that what all progress we have got, you can go and check the Instagram handle of Insight SSB. You will find the course reviews and you'll get an idea that how Insight SSB students are able to make it through. So now just jumping right into the video so as to understand what are the problems, what are the solution, and how to make it through the CDSU 2021. Now coming to the first thing, we will go in a stepwise manner. We'll try and understand the problems, and the problem you'll get to know once you see the cutoff. Okay. Initially, if we talk about CDS 1 2019, you can see the cutoff was near about 116. And if we talk about CDS 1 2021, it is almost a tentative cutoff because UPSC has not released the cutoff as of now. So we can take it near about 145 to 150. And if we talk about OTA, it was 78 back then and it has gone 105 plus this time. So can you see that there has been such a huge jump in the cutoff? There must be a reason for it. All of you, you plan and aim that, okay, this was 78 this time. So let us plan, we will score, 10 marks over 78, and we'll try hard and strive hard and we will get good marks. But your plans fail. Why? Because the trend of the examination is changing. The trend is changing in a way that the paper is comparatively getting easier. It's not like people who were, giving the examination beforehand, they were not studying. They were equally studying for the examination. Plus, these days, UPSC civil services students have also started giving the CDS examination and CAPF examination, because of which the, competition, it has risen a little. But what we have to do is that we need to bridge this particular gap. And how will we cover this gap? There are two options with you. The first one is hard work and another one is smart work. Insight SSB goes along with smart work. The reason for the same is that we have seen lot of messages coming immediately after examination of the students who were following Insight SSB were able to do current affairs in a good way, because we provide very specific things to students. But they couldn't clear the examination because firstly they were not enrolled anywhere in Insight SSB courses, and secondly they didn't have any kind of guidance. Okay, so now this video will guide you through that, how you need to prepare yourself. So this chap, he has been studying quite hard since 3-4 months, and he was giving almost 7 to 8 hours. So he was doing this hard work and still he was not able to clear it. Now what's been the reason for it? The first thing is that we will talk about the problems and then we'll go to the solutions. After going through all the messages that you all have given to me after conducting that survey, I found that there are these major issues which are written down here. The first one is that you lack consistency. आप वीक के अंदर 2 दिन तो अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन another 3 to 4 days in that myth कि okay, I read a lot, आप waste कर देते हैं सारा time. This is a major issue that all of you have, or whatever you read on these 2 days or 3 days, what happens with you is you tend to forget it completely, and remaining 1 or 2 days you give 1 hour or maybe you give around half an hour and you study.
So this is what is known as lack of consistency. If you will not stay consistent, you will not be able to remember the things. Coming to the next thing is that which topics are to be read. My retention power is very, very low and I don't have any timetable or plan. What kind of notes I have to make? These are the kind of questions that I'm getting from you all. Now, first thing that we need to plan upon is that हमें पढ़ना कैसे है, बिकॉज द इशू विद यू लाइज इन अ फैक्ट कि यू जस्ट गो स्ट्रेट अवे एंड आस्क कि कौन सी बुक्स पढ़नी है. प्लीज डू द होमवर्क फर्स्ट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आपको चाहे एक वीक लग जाए स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए, लेकिन दिस 1 week, दिस स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू टू कंप्लीट द सिलेबस इन अनदर 2 months and clear the examination. Otherwise, you will keep working hard for 5 months without giving this 1 week. And you will act very foolish and you will not be able to clear the examination. Okay? The first thing we come here is the strategy. हमें पहली बात ये याद रखनी है कि अभी जो we are going to do is that we are going to run a marathon. Why marathon? मैराथन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम अपना फुल जोश कभी भी स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, बिकॉज इफ यू गोना डू दैट टिल द एंड यू विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी एनर्जी एंड यू विल नॉट बी एबल टू विन द मैराथन. मैराथन और स्प्रिंट रेस में एक डिफरेंस होता है. हमें जो चीजें हैं इस तरीके से पढ़नी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़नी है, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़नी है, क्योंकि अभी आप अगर अपने आप को लूजन अप कर दोगे स्टार्टिंग में ही, या फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, बिकॉज एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आता है आप फर्स्ट मंथ बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, यू गिव ऑलमोस्ट 5 hours per day, and after that you see कि okay there are almost 5 months 6 months left in between, अभी पढ़ के क्या होगा, we'll study in the end, and finally the time it slips by your hand like sand. And again November में अगर examination है, you are standing at a position in September and October, and again आप उसी condition में होते हो that what should I do now, अब तो मेरे पास time ही नहीं बचा है, right? Now coming to these 4 steps that we are going to follow right away. The first one being that we will build a strategy. Second one we'll go to that which topics are to be read. Third one is how to read things. And the fourth one जो आप सबसे पहले करते हैं, from where to read. आपने जिसने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, you go to them and ask कि please tell me the books. They will start telling you 6th से 12th NCERT पढ़ लो, ठीक है. They will tell you okay go and do Lakshmikant also, do Spectrum also. They will actually give you this big list of books and you will be like okay we have to do this much, there is so much to do, हम लोग को रोज 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा. So this is what mindset you hold after that. We don't have to do this. We'll strategize our preparation. Coming to the first step. देखो this particular thing that is your exam, जो previous year exams हैं, previous year questions, these are God for you. ठीक है. Why? Because ये आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना किस तरीके से है. ठीक है. पिछले ऑलमोस्ट आप 5 साल के पेपर्स उठाएंगे and you will check out that which kind of things are being asked in the examination. Syllabus तो बहुत huge है, books almost civil services, CAPF, FCAT etc. सब लोग यही बोलते हैं that go and study NCERTs, but that is not the case. हर चीज के पढ़ने का तरीका अलग होता है. हम सबसे पहले गोल डिसाइड करेंगे कि अगर हमें इस गोल पे पहुंचना है तो क्या सारे रास्ते हमें अपनाने हैं या फिर कोई एक शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू वी कैन अचीव गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन. कमिंग टू द फर्स्ट थिंग दैट इज नोन एज सब्जेक्ट प्लानिंग. अब आप सब लोग जो हैं यू मस्ट बी फ्रॉम सर्टेन बैकग्राउंड, जैसे somebody मस्ट बी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और somebody मस्ट बी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट, और कुछ लोग आर्ट्स से होंगे. आप सबके पास सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं आपके. जैसे इफ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड देयर आर चांसेस कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एंड इन केस यू इवन हैड बायोलॉजी, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके काफी अच्छे होंगे, राइट. कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, कोई आर्ट सेक्शन से है, सो दे विल बी वेरी गुड इन दो सब्जेक्ट्स. एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे. गेटिंग इट? तो ये वाले जो सेक्शंस हैं इनको पहले आप अच्छे से करेंगे एंड इनको प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे. और आपको क्या कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं स्पेसिफिकली, वो कहां से पता चलेगा? यू विल गेट टू नो थ्रू दिस पर्टिकुलर पेपर. इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. यू विल गेट टू नो व्हेन वंस यू गो थ्रू दिस पेपर. ओके, सो साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पहले बहुत अच्छे से करो. देखो हमें 40+ मार्क्स एम करके चलने पड़ेंगे जीएस के अंदर,
All those people who think they'll cross 50 plus marks, 60 plus marks, 70 plus marks, please don't act foolish because ये UPSC level examination है, बहुत tough exam आता है. तो वी हैव टू प्लान इट इन अ वे दैट अगर हमें ऑलमोस्ट 120 मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट हमारा जो OTA में सिलेक्शन है वो 100% हो जाए, प्लस मैथ्स अगर आप जोड़ लेते हैं सो आप 30-40 मार्क्स तो आराम से मैथ्स में भी लेके आ सकते हैं. तो आपका फाइनल जो मेरिट है उसमें आपका नंबर आ जाएगा. तो अगर हम 40 प्लस मार्क्स की बात करते हैं GS के अंदर, वी नीड टू स्ट्रैटेजाइज इट इन अ वे. कैसे करेंगे हम? सबसे पहली बात, जो हमारे खुद के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से करेंगे. वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम 60% अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कर ले, इवन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो थोड़े टफ है और हमने नहीं पढ़े हैं. जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप सबसे पहले साइंस कंप्लीट करोगे कि आपके ऑलमोस्ट साइंस के 20 क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर. सो आपके ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स हो जाएं एंड यू कैन सिक्योर नियर अबाउट 22-23 मार्क्स आ जाते हैं अगर आपको साइंस अच्छे से आती है. ठीक है, सो हम सबसे पहले अपने मार्क्स सिक्योर करेंगे साइंस से. द सेकेंड स्टेप दैट वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर इज कि हमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, और थर्ड थिंग इज कि हमारे पास इकोनॉमिक्स भी है. हमें इनमें से चूज करना है. इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली इजी होती है. माइक्रो में क्या होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको ग्राफ्स वगैरह देखने पड़ते हैं. दैट गेट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. तो आप क्या करेंगे, यू विल स्किप आउट सर्टेन सेक्शंस एंड यू विल गो फॉर द एरियाज जो इजी हैं, प्लस आपसे योजना पूछी जाती हैं और वट एवर इज इन करंट वो पूछा जाता है. सो ये दोनों चीजें तो इनसाइड SSB विल टेक केयर. तो प्लीज फॉलो द यूट्यूब वीडियोस, विल टेक केयर ऑफ दीज 2 सेक्शंस. तो आप क्या करेंगे, कुछ सेक्शन स्किप आउट कर देंगे. सेम इज द केस विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी. इसमें से भी आपको सर्टेन सेक्शंस उठा के प्रिपेयर करने हैं. यू डोंट हैव टू गो कवर बाय कवर ऑफ द बुक. ठीक है, कमिंग टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, उनको भी सेम चीज करनी है. देखो साइंस का क्या है, दैट 10th लेवल तक की साइंस आती है मैक्सिमम, दैट इज 60%. और 40% क्या होता है कि ऐसी साइंस आती है जो आप लोग नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड आती है, दैट यू कैन नॉट डू. जैसे मैंने आपको बताया कि आप माइक्रो नहीं कर पाते साइंस वाले, सेम वे आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं दे विल नॉट बी एबल टू डू साइंस इन अ गुड वे. बट दिस 60% इज फॉर एवरीवन, बिकॉज ये जो है बेसिक 10th वाली आपकी साइंस है एंड यू कैन कंप्लीटली डू इट. ठीक है, तो हमें इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा. सबसे पहले अपने सब्जेक्ट सिक्योर करेंगे. वी विल गेट अराउंड 15 to 20 मार्क्स अपने खुद के सब्जेक्ट से, उसको अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज जो ऑलरेडी आता है उसे पॉलिश करेंगे. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, वी विल डू दो सेक्शंस जो कि कंपैरेटिवली इजी है और बहुत रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आ रहे हैं प्रॉपर्ली. और ये कैसे पता चलेगा, दिस आई लेट यू नो अहेड. ठीक है, एंड देन कमिंग टू द थर्ड थिंग दैट इज योर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स का आप पूरा जो सपोर्ट है यू विल गेट फ्रॉम इनसाइट SSB यूट्यूब चैनल. तो प्लीज कीप फॉलोइंग. लास्ट टाइम भी आउट ऑफ 10 क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम करंट अफेयर्स, 9 वर फ्रॉम द इनसाइट SSB वीडियोज इटसेल्फ. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच इट कंप्लीटली. तो हमने पहला क्या किया, हमने अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करी कि हमें क्या पढ़ना है, हम पहले क्या पढ़ेंगे और कैसे करेंगे. ठीक है, कमिंग to the next point, that is which topics are to be read. अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. मैंने आपको क्यों बताया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो फॉलो करने हैं. देयर इज अ रीजन. यू नो व्हाट, 20% ऑफ योर सिलेबस हेल्प्स यू इन गेनिंग ऑलमोस्ट 60% मार्क्स. और ये सिर्फ आपका जो अभी वाला एग्जाम है दैट इज CDS या FCAT, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ. इवन इन बोर्ड्स, इवन इन कॉलेज एग्जाम्स, यू मस्ट हैव सीन कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्पेसिफिकली पूछता है. एक हर एग्जाम का ट्रेंड होता है. ठीक है, तो जब ये 20% सिलेबस 60% मार्क्स दिला रहा है, सो व्हाई आर एक्टिंग फुलिश एंड यू आर रनिंग बिहाइंड दैट 80% सिलेबस? व्हाई आर यू डूइंग दैट? आपको कैसे पता चलेगा दैट विच टॉपिक्स आर टू बी रेड? अ सिंपल सोल्यूशन टू इट इज दैट प्लीज गो थ्रू दिस ट्रेंड. बेसिकली आपको पता चल जाएगा. फिजिक्स और बायो में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन्होंने केमिस्ट्री में ज्यादा डाले हुए हैं. सो थिंग इज इट इज नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस जो इस एरिया से पूछे जाते हैं आपसे. सो व्हेन वी कम टू दीज एरियाज, हमें एक चीज का ध्यान देना है कि डिफेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो देखेंगे कि ये टॉपिक है, ये पूछा जा रहा है. जैसे प्रेसिडेंट काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है. डिफेंस के डायरेक्ट हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, देन कमिंग टू द हिस्ट्री सेक्शन, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं. इतनी मेडाइवल और आपकी जो एंशिएंट है उतनी नहीं आती थी, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. एज आई टोल्ड यू, इट हैज स्टार्टेड कमिंग अप. ज्योग्राफी में पीपल गिव देयर होल हार्ट टू द NCERT स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स टिल द 12th, बट दे डोंट रियलाइज कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं.
If you do, map properly, you're able to do a lot of questions in geography. So you don't realize these facts and you're just, reading and studying the books thoroughly, but you don't go behind the previous year questions and try and understand what is this examination expecting from you and what is going to be asked in the examination. Okay, so please do it very, very thoroughly. And if we talk about CDS2 2021 GS course that's available, हम लोगों ने इसी ट्रेंड के बेस पे क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको देख के हमने एग्जाम के जो है प्रॉपर एनालिसिस करके चीजें ऐड करी है, बिकॉज टॉपिक्स बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन उस एरिया में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, दैट इज इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ इट इज टू बी रेड. हाउ इट इज टू बी रेड इज अगैन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे आपने टॉपिक्स डिसाइड कर लिए कि प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देन डिफेंस के क्वेश्चंस आने ही आने हैं. ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं वो अच्छे से फॉलो करूंगा. साइंस के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं वाइटामिन्स में से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वाइटामिन्स, डिजीजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड यू गो अराउंड वेरियस थिंग्स. ओके, सेम इज द केस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एरियाज हैं. तो अगर आपको ये पता चल गया दैट ओके दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू रीड, आई हैव टू जस्ट गो अबाउट दिस 20% पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दैट हाउ टू रीड. अब 20% पता तो चल गया, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एफकैट में भी और सेम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी आता है, लेकिन अगर हम सीडीएस एग्जाम की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट, राइट. बुक्स तो सबको सेम ही पढ़नी है, स्पेक्ट्रम यू विल आल्सो रीड, अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो रीड. तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस कम्स इन how we have to read it. Coming to this question, this is a question of FCAT examination. Okay, please look in here. You will find that scheme by central government जिसने strengthen किया है bond, state, region and जो products हैं of India. कौन सी स्कीम है, ठीक है. लेकिन अगर हम उसी क्वेश्चन की बात करते हैं सीडीएस एग्जाम के अंदर, यू विल फाइंड कि आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है. यहां पर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी था, लेकिन यहां पर हमें स्कीम के बारे में कि वो क्या क्या कर रहा है, सेकेंडली कितने लोगों पर इसका इफेक्ट आने वाला है, ठीक है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू डू इट. सो सीडीएस इज बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. और अगर हम सिविल सर्विसेज पे पहुंच जाते हैं तो उसमें असर्शन रीजनिंग भी आनी शुरू हो जाती है. सो हमें क्या ध्यान देना है कि हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. स्टेटमेंट बेस्ड के लिए हम सिर्फ ऊपर की नॉलेज रखें, दैट विल बी हेल्पफुल इन एफकैट, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन आवर सीडीएस एग्जामिनेशन. गेटिंग इट? तो हमारे लिए स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसलिए हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है. इसलिए whoever is going for those combined courses of FCAT and CDS, they will be of no value because आप FCAT के टाइम CDS पढ़ रहे होगे, CDS के टाइम पे FCAT पढ़ रहे होगे. दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न और दोनों का जो आपका बेसिक्स है, किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, सो हमें सीडीएस में क्या करना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी. और कितना इन डेप्थ करना है दैट यू विल गेट टू नो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो अगर मैं आज की डेट में योजना पढ़ रही हूं, सो अगर मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पता है दैट विल बी हेल्पफुल इन एफकैट, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल in serious examination. I should at least know 5 to 6 topics or lines about that particular yojana and उसका अभी recently क्या effect आ रहा है. Getting it? So got to know how to read. तो हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली है. First thing is strategy, हमें कैसे पढ़ना है, that is subject planning. Coming to the second thing, we have done क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं. कमिंग टू द थर्ड थिंग, हमें ये टॉपिक्स पढ़ने तो कैसे पढ़ने, बिकॉज सब एग्जाम में बुक्स तो सेम है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, जहां पर आप सबसे पहले आते हैं, सबसे पूछने जाते हैं बुक्स कौन सी पढ़नी है. नाउ कमिंग टू द फैक्ट फ्रॉम वेयर टू रीड, आई विल टेल यू बेसिक्स. ओके, 6 to 12th एनसीईआरटी नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है. 11th एंड 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इट इज मोर देन इनफ अलोंग विद समथिंग नोन एज एटलस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है. कमिंग टू द सेकेंड थिंग, आपकी जो पॉलिटी है उसमें एनसीईआरटी का कोई यूज नहीं है. एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, बिकॉज काफी टफ आती है पॉलिटी. ओके, सो यू विल नीड लक्ष्मीकांत फॉर इट. यू डोंट हैव टू रीड इट कवर टू कवर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. आप जो भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज भी मैंने आपको जो बताई हैं ये आप करेंगे, लेकिन कवर टू कवर नहीं पढ़नी है. यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी चैप्टर आउट ऑफ इट. ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल यू आर रीडिंग, और वो आप कैसे पता लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है. ठीक है,
कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, पाथफाइंडर नॉट अ रिक्वायरमेंट। इसमें काफी स्टेटमेंट्स गलत हैं, नॉट बी यूजफुल, नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं आजकल बच्चे पाथफाइंडर पढ़ के। एनसीईआरटीज आर द बेसिक्स, यू नीड टू डू इट, लेकिन आपके कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें एनसीईआरटीज काम नहीं देंगी। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी गुड, जो आपकी माइक्रो की एक तो बुक आती है पतली सी और एक मैक्रो की आती है। यू कैन डू बोथ ऑफ दीज एंड दीज विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, एंड आप सबसे ज्यादा टाइम जो है यू स्पेंड ऑन हिस्ट्री ओनली। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप हिस्ट्री को कितना भी पढ़ के चले जाना, यू विल फाइंड क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। इनिशियली वो मेन लीडर्स पे क्वेश्चन पूछते थे, आजकल जो साइडलाइन लीडर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। सो इट इज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो किसी भी चीज की, कि अगर मैं इतना टाइम इसमें 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा है इसमें से या नहीं मिल रहा, मैं तभी अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा। गेटिंग इट? सो दिस इज द वे यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू सी टू थिंग्स। तो हिस्ट्री का तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, इवन इफ यू आर एबल टू डू 40 to 50% ऑफ द पेपर बाय स्टडिंग लिमिटेड, इट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हिस्ट्री इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। इवन जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है हिस्ट्री का पेपर क्रैक करना। सबसे ईजी जो रहता है दैट इज पॉलिटी। ठीक है, साइंस बहुत ईजी होता है आपका जो सीडीएस का है। सो दीज आर द टू एरियाज जहां से आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। कमिंग टू अदर सेक्शन, इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो नॉट अ लॉट ऑफ इट इज आस्क्ड। एंड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स तो मतलब बहुत ही स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, आप लोग सब कुछ पढ़ने लग जाते हो। करंट अफेयर्स में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू रीड सर्टेन एरियाज ओनली एंड दिस विल बी कवर्ड बाय इनसाइट एसएसबी। यू कैन जस्ट कंप्लीटली फॉलो अस फॉर इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दैट इज गुड फॉर योर एसएसबीज, यू विल बी एबल टू गिव गुड पॉइंट्स इन योर जीडी एंड लेक्चर इट, बट सीरियसली टेलिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग until unless you're not making notes out of it on regular basis, which is actually a very tedious task, so you can just leave it on Insight SSB, because newspaper reading से आपको of course thought process आपका develop होगा, you will get to know what's happening, but won't be very very useful when it comes to your CDS written examination, because you cannot remember almost a year's newspaper, और जब तक आप revision नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। So you will of course need current affairs magazine for the same, ताकि आपको एक compiled format में सारी चीजें मिल जाए। So you can go and follow Insight SSB की current affairs magazine on Insight SSB app, you will find it. Now once we have strategized, आपको सब पता चल गया है कि कैसे टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे उन्हें पढ़ना है। सो दिस इज द होमवर्क, यू नीड टू डू दिस। ठीक है, इस वजह से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते, यू डोंट गेट टू नो कि पढ़ना कैसे है। आप पढ़ने बैठ जाते हो बट यू डोंट नो हाउ टू स्टडी फॉर इट। ओके, सो नाउ यू गॉट एन आइडिया, ओके दिस इज द वे आई विल प्रिपेयर फॉर इट। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू एज अ गाइड इन हियर सो दैट यू गेट टू नो कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, because when I was preparing, I used to go around on YouTube, I didn't find anything relevant like this, so I just wanted to make sure that I give my students this particular guidance that okay, this is the way you have to go about studying. Coming to the next thing, अब मुझे एक चीज सब बोलते हैं, मैम आई कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन बिकॉज मेरी रिटेंशन बहुत ज्यादा वीक है। नाउ सीरियसली टेलिंग यू वन थिंग, द पीपल हु फेल्ड दे आर नॉट गजनी and the people who topped, they are not chitti robot कि उन्हें सब कुछ याद रहता है। There is something that you are missing out here and that is consistent and regular revision. आप ये चीज जब तक नहीं करोगे ना, you will not be able to clear the examination. मैंने बहुत लोग देखे हैं, there are toppers like us who are able to clear the examination, get a good rank, get good marks. Now what's been the reason? I'm not a superhuman, I don't have that robotic brain. Neither you are गजनी कि आपको चीजें याद नहीं रहती है। टॉपर्स एंड फेलियर्स में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड रिविजन। अगर आपने इन दो चीजों को पकड़ लिया, यू विल बी एबल टू डू इट। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे क्या बात करती हूं, दैट आप रेगुलरली सिर्फ 1 घंटा देंगे पढ़ाई में, लेकिन आप प्लान्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे। उसके लिए मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी अभी, सो दैट यू गेट कंसिस्टेंट विद योर वर्क। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग नोन एज रिविजन, रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और रिविजन कैसी होनी चाहिए, रिविजन का कुछ एक मेथड होता है, दैट इज नोन एज योर स्पेस्ड रिपीटिशन और स्पेस्ड रिविजन्स। ठीक है, और ये जो है दिस वी फॉलो इन आर टाइम टेबल, दैट इज ऑन इनसाइट एसएसबी टाइम टेबल, जो भी हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो दे हैव सर्टेन टेस्ट्स कि इस पर्टिकुलर डेट को आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, दिस आई विल डिस्कस अहेड। तो आप अच्छे से एक बार टाइम टेबल देख लेना सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट इट। सो स्पेस्ड रिपीटिशन होना चाहिए, मतलब जो चीज आज आपने पढ़ी है
you are not a superhuman that you will remember it thoroughly. This is what toppers do, and this is how I have been studying since my school times. This is the reason why I was able to crack a lot of examination. Okay, so the thing is that what we learned at the first time, we have 100% retention of it. ठीक है, धीरे धीरे जो रिटेंशन है वो लोअर डाउन होता जाता है एज डेज गो बाय. ओके, दिस इज द डेज एंड दिस इज द रिटेंशन. सो ऑन द थर्ड डे वी आर ऑलमोस्ट लेफ्ट विद ऑलमोst nothing in our head. This is what happens. But if we start reviewing, for example, what I read today, I just reviewed it tomorrow, and after that, after completing that first review, I reviewed it again on the weekend. आपने एक चीज सुनी होगी कि आपने जो आज पढ़ा है, this is the way we used to study even in school. जो टीचर्स हमें फोर्स करते थे कि आज आपने जो पढ़ा शाम में जाके पढ़ना है, कल फिर उसको रिवाइज करना है, फिर वीकेंड पे आपको फिर से रिवाइज करना है. There used to be unit tests planned in this way. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, we have forgot the trend and we are not able to do it in the similar manner. This is the reason why you are not able to clear the examination. Okay, so you need these spaced revisions. आपको चीजें याद रहेंगी, लेकिन अगर आज आपने चैप्टर 1 पढ़ा था लक्ष्मीकांत का, तो आपको वो कल एक बार फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि आपने अगर आज 1 घंटा लगाया था उसे पढ़ने में, कल रिवीजन में आप उसको सिर्फ 20 मिनट्स में कवर करोगे. ठीक है, एंड व्हेन वी कम टू समथिंग दैट इज द वीकेंड पे आप क्या करोगे, दैट मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आप 1 घंटे में रिवाइज करो. ठीक है. सेकेंड थिंग दैट यू गाइज डू, द बिगेस्ट मिस्टेक आई मे से, नोट मेकिंग. You guys don't know how to make notes. Notes में आप लोग पता है क्या करते हैं? I have seen my students making notes. वो पूरे जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जैसा मैंने पढ़ाया, जैसा एजुकेटर ने पढ़ाया, as it is उसे लिख लेते हैं, whatever has been taught. That is not how you make notes. You don't have to make another book by your XYZ name and your own publication. आपको बुक जाके सबमिट नहीं करनी है किसी को, राइट? आप नोट्स किस लिए बनाते हैं? आप नोट्स बनाते हैं क्विक रिविजन के लिए. और क्विक रिवीजन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जब मैं पिछले दिन एग्जाम से पहले बैठूं तो मेरे पास ऐसे 5 से 6 पेजेस हो जिनको देख के मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ याद आ जाए. गेटिंग इट? लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यू एक्ट वे टू स्मार्ट एंड आप पूरी की पूरी बुक एज इट इज लिख देते हैं, एंड पिछले दिन आप बैठ के उन हाईलाइटेड एरियाज को पढ़ रहे होते हो एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन. गेटिंग इट? सो सेकेंड चीज आती है नोट मेकिंग. नोट मेकिंग कभी भी फर्स्ट और इन डेज पे नहीं की जाती है. ठीक है, आप पहले उन्हें पढ़ें, पहले आप एनालाइज करें, फिर इसके बाद आप टेस्ट्स देंगे. ठीक है, यू विल गेट टू नो कि ओके फाइन, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए या फिर आपने XYZ कोई भी टेस्ट सीरीज लगाई, सो यू विल गेट एन आइडिया दैट ओके दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप एंड आई हैव टू डू इट इन दिस वेरी मैनर. एंड आफ्टर दैट यू मेक नोट्स, और नोट्स भी आप इतने स्पेसिफिक बनाते हो. आई जस्ट शेयर माई ओन नोट्स विद यू. तो ये आपको अगर पता होगा, इफ यू मस्ट हैव रेड, तो एक सिटीजनशिप वाला चैप्टर है, इफ यू नो. ठीक है, लक्ष्मीकांत के अंदर. एंड दीज आर द नोट्स ऑफ माई सिटीजनशिप चैप्टर. आई गेस यू कैन सी हाउ कंसाइज्ड दे आर. What is the reason I was able to make these concise notes? Because I didn't prepare it on the first day, the second day I read it. I gave it at least 2 to 3 revisions properly first. Thereafter, I checked my previous year questions that okay, I'm able to study. Then I found कि okay, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से ये पर्टिकुलर चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और मैं सिर्फ इसी पार्ट के नोट्स बनाऊंगी. अब आई विल नॉट बी अ पर्सन हु विल जस्ट गो एंड मेक एवरीथिंग जो भी लक्ष्मीकांत ने गिवन है. और फाइनली मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है. तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज, नॉट इवन हाफ ऑफ द पेज, मैंने सिर्फ एक छोटे से सेक्शन में 1/3 ऑफ द पेज आई मेड माई नोट्स ऑन सिटीजनशिप. इन द सेम वे मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए हुए हैं. एंड दिस इज वॉट इज वर्किंग इवन इन द इनसाइट SSB कोर्स. जितने भी कोर्सेज है, मैं उसमें अपने जो सेक्शनल नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, उसी के थ्रू हम लोगों ने अपने जो भी कोर्स का मटीरियल है प्रिपेयर किया है. तो दिस इज द वे यू नीड टू स्टडी. गेटिंग इट? तो आपका अब क्या काम है, आप सबसे पहले बैठेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शंस या टॉपिक्स निकालेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट आप उसे पढ़ेंगे कि ओके दिस इज द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो आई विल स्टडी लाइक दिस. उसके बाद आप उसे 3-4 रिवीजन के बाद आप उसके नोट्स बनाएंगे एज आई एम शोइंग यू, एंड फिर आप उसको मल्टीपल रिविजन्स देंगे सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद दिस पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग, ताकि आप जितने भी लोग प्रेपरेशन कर रहे हो, यू गेट दिस पर्टिकुलर वे. एटलीस्ट आई कैन मेक अ वे फॉर यू थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज द वे आई हैव टू स्टडी. Fine. So I have given you an idea how to do revisions,
रोज 5 घंटे नहीं पढ़ना है, एक एक घंटा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो और उस चीज की रिवीजन लो। रिवीजन कभी भी ऐसे नहीं होती कि आपने 2-3 महीने पढ़ाई करी और फाइनली लास्ट मंथ आप रिवीजन कर रहे हो। जब तक आपकी एक रेगुलर रिवीजन नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गजनी एंड अ चिट्टी. चिट्टी ऑलमोस्ट रिवाइज्ड एवरीथिंग. I know it sounds funny, but Chitti revised everything and Gajni didn't revise anything, so he don't remember anything in the examination, but Chitti can speak out everything whatever is being asked. He is basically encyclopedia. This is the difference between any topper and any failure. Now I would like to add one more point when it comes to note making. The thing is that whenever you are studying geography, you have to study it by atlas. Why I tell you this thing? The thing is that even in the course, I've made sure that I provide geography through maps to students. More videos will be added in the same. And thereafter, I give them questions so that they understand what is important and how the questions are being asked. Because you don't have to learn specifically certain things. Instead, आपको उनकी chronology याद करनी पड़ती है. For example, if I talk about north to south, आपको अगर hills जो हैं उनको arrange करना है, तो you will not be able to do it because आपको ये पता होगा south में कौन सी highest peak है, या फिर आपको ये पता होगा that which all hills are there, but you will not be able to arrange it in that way, right? But हमें questions जानना बहुत जरूरी है. उसके साथ साथ अगर हमें pictorial memory रहेगी that this hill was on the northern side and this one was on the southern, so we'll be able to arrange it very nicely. And secondly, we will be able to remove certain statements out of it. जैसे A B C D given होती है, तो अगर हमें पता होगा कि southern most ये है और आपको कुछ और दिया हुआ है ऑप्शन में, you can directly cancel it out and therefore आप intelligent guessing भी कर सकते हैं, right? Now coming to the next thing, that is timetable. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी that consistency is required. कंसिस्टेंसी आप जब डेवलप कर पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे. द थिंग विद यू इज दैट यू प्रिपेयर वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स दैट मुझे तो CDSU 2021 क्वालिफाई करना है, बट व्हाट इज द प्लान? सेकेंडली, आप अगर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे और उस गोल्स के साथ आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज अटैच कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी कि मुझे इस संडे को ज्योग्राफी का टेस्ट देना है, राइट? And I say that if I clear this particular test with over 70% marks, I will treat myself with something. Maybe if I like to go to McDonald's, I'll go there. I'll go to Domino's or whatever is my hobby, that I'll be able to watch this movie only if I complete this and get these many marks. Okay. So this is the way I will decide upon short-term goals. Second thing जो मैंने आपको बताया, that is multiple revision. Multiple revision कब होगी? जब आप spaced revisions रखोगे, ठीक है? तो इसके लिए मैंने अपने students के लिए क्या किया है, that I have divided it into short टेस्ट्स. ओके, जैसे 11th एंड 12th की बुक होती है फॉर ज्योग्राफी, राइट? तो उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं दैट 11th मुझे इस संडे तक कंप्लीट करनी है, 12th वाली नेक्स्ट संडे तक करनी है, एंड उसके बाद मुझे उसके छोटे छोटे जो है टेस्ट देने हैं, ठीक है? जैसे अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो आई प्रोवाइडेड देम विद सर्टेन वीडियोस दैट दे हैव टू कंप्लीट फॉर इट, ठीक है? सो इस तरीके से आपका फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है. अब इससे क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करी, मंडे टू फ्राइडे आपने सर्टेन टॉपिक्स की, जैसे फर्स्ट डे आपने माउंटेन रेंजेस पढ़ी, सेकंड डे आपने लेक्स पढ़ी, ओके, एंड फाइनली ऑन संडे यू गिव द टेस्ट. अब क्या होगा, फर्स्ट डे आपने पढ़ाई करी, सेकंड डे आपने फर्स्ट डे का भी रिवाइज किया, एंड सैटरडे को अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया आप रिवाइज करेंगे ताकि आप संडे को टेस्ट दे पाए. Now what happens is कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी 2 रिविजन्स कंप्लीट कर ली हैं, ओके, एंड देयर आफ्टर मैंने क्या किया, जैसे अगर मैंने टेस्ट ज्योग्राफी के सेक्शनल रखे हैं पहले, उसके बाद आई हैव मेड श्योर कि मैंने पॉलिटी के टेस्ट रखे हैं बीच में, एंड देयर आफ्टर मैंने फुल लेंथ आपका ज्योग्राफी का रखा. तो इससे क्या होगा, सेक्शनल के बाद जब आप वापस पॉलिटी पढ़ के ज्योग्राफी में जाओगे सो आपकी रिटेंशन और बढ़ेगी, बिकॉज आप फिर से रिविजन करेंगे पूरे 2 वीक्स जो आपने पढ़ा था. Getting it? So this is the way you do repetitive revision. अब आपने इस तरीके से सेक्शनल किए, उसके बाद फुल लेंथ करे सेक्शनल वाइज, दैट इज आपने पहले ज्योग्राफी का किया, फिर आपने पूरा साइंस का किया आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देन आपने ऐसे ही एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ के फिर हिस्ट्री करा. इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 मंथ्स में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. देयर आफ्टर आप क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे खुद को, ठीक है? या तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे अगर आप चाहें तो इनसाइट SSB की भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आपने टेस्ट दिए, उसके बाद अपने करंट अफेयर्स भी आप अपडेटेड रखें, उनके भी टेस्ट दें अच्छे से. सो दिस विल बी द वे यू विल बी गोइंग अबाउट थिंग. इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी बिकॉज यू विल हैव अ टाइम टेबल. सेकेंडली, आप मल्टीपल रिविजन्स दे पाएंगे. व्हाट इज द इशू विद यू इज कि आप पहले 2-3 महीने सिर्फ पढ़ते रहते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. इसके थ्रू आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड, आप किस तरीके से एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. सेकेंड थिंग इज दैट आप मल्टीपल रिविजन करते रहोगे. अगर आप 2-3 महीने पढ़ के फिर रिविजन करोगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. दिस इज द वे यू नीड टू रिवाइज एंड दिस इज द वे आई प्रोवाइडेड माई स्टूडेंट्स विद द थिंग्स. ओके, नाउ गोइंग अहेड,
you have this option of skipping out everything if you wish and go for the courses directly, because यहाँ पर आपको सारी चीजें जितना भी मैंने आपको बताया अभी, you'll get all of it. I have prepared short notes, whatever comes in the examination, हर चीज प्रोवाइड की है. And secondly, जो best educators हैं, like I know what comes in economics, I know what comes in science, I know what comes in polity. तो मैंने उसके जो सेक्शनली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने एजुकेटर्स को प्रोवाइड की हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड इन देयर ओन सब्जेक्ट्स. दे कैन मेक यू अंडरस्टैंड, दे कैन मेक यू रिमेंबर थिंग्स वेरी वेल. ओके, सो दिस वे वी ऑल हैव सैट डाउन एज अ टीम एंड हैव मेड दिस कोर्स इन अ वे दैट इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, एंड आई गारंटी यू 40+ मार्क्स. इसके बाद आप मुझसे ये भी पूछते दैट मैम डू वी नीड टू buy certain other books, go for this and that? No, you don't have to do anything, because I have made sure all NCERT standard books, whatever comes, is added in this particular course. Plus, if you wish to go for test series only, कि आपको एक regularity चाहिए, और इसमें क्या बेस्ट पार्ट है, आपके पास लाइव डाउट सेशंस भी हैं. You saw here, यहाँ पे लाइव सेशंस हैं जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं आफ्टर यू आर डन विथ गिविंग दीज टेस्ट्स. So you can join this particular test series if you want that regularity. आपके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, आपको एक एम चाहिए, प्लस आपको अपने डाउट्स भी क्लियर करने हैं. सो यू कैन जॉइन दिस टेस्ट सीरीज, एंड whoever join it till 20th of April, we will provide them directly 200 off, and you'll get it only at the rate 699. Talking about this course, इसमें ये टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है. बेस्ट पार्ट आपका ये है, एंड आपको ये कोर्स नवंबर तक आपके साथ रहेगा, सो दैट यू कैन बेसिकली कवर अप एवरीथिंग वेरी वेरी नाइसली. आपको एंड में रिविजन्स भी कराई जाएंगी, रिविजन टेस्ट भी होंगे, एंड दिस इज द मेन रीजन वाई द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर. जो भी इनसाइट एसएसबी स्टूडेंट्स हैं वो इसी रीजन की वजह से सीरियस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं. इफ यू विश टू बी द वन, you should either follow this strategy completely, and if you wish you can go for these courses and test series. That will be very beneficial for you. Please make sure that you share this video with all the friends जिनको बहुत issues आ रहे हैं, so as to clear the examination. This will be quite helpful for all of them. All the very best, my students. I'm very sure that you'll make it through the examination, and let's aim for CDS 2021 together.